Hello, my dear students. How are you all doing? Welcome to our YouTube channel, Drishti Academy. So, today we are here with one of the most important sections of your English grammar, that is article writing. Yes, students. So, in article writing, before we try to emphasize on the topic, let me tell you in brief about what CBSE says upon this topic, right? तो आइए हम समझते हैं कि सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम दिया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सी, so for format students we have got 1 marks, right? For content we have 2 marks and for expression we have got 2 marks again. All right, so when we are seeing this entire topic we have in total 5 marks. अच्छा सुनिए, फॉर्मेट अगर हम देखें तो बेसिकली दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है हमें आर्टिकल को लिखते वक्त. पहली चीज़ जो आपको नहीं छोड़नी है दैट इज़ योर टाइटल, राइट? एंड सेकेंड थिंग जो आपको नहीं लीव करनी है वो क्या है स्टूडेंट्स? बाय लाइन. नाउ मैम व्हाट इज़ बाय लाइन, हाउ टू राइट अ टाइटल? तो ये वीडियो आपको सब कुछ समझा देगा. वट एवर योर डाउट्स आर देयर स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई टू टैकल ईच एंड एवरी डाउट दैट यू माइट एवर थिंक ऑफ, राइट? So students, no mark for format if content is irrelevant or missing. आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग कंटेंट डिसाइड करना है. आप टॉपिक से इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिख सकते हो. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, पार्शियल क्रेडिट ऑफ हाफ मार्क्स इफ एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स इज मिसिंग. अगर आपने कुछ छोड़ दिया, मैम क्या छोड़ेंगे? फॉर्मेट तो सीख लेंगे हम वीडियो से फॉर श्योर. कंटेंट आपको कैसे लिखना है, आई विल टीच यू पीपल कि आपको कंटेंट वैसे लिखना है. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन, दैट मीन्स आप कैसे अपनी फीलिंग्स को उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज़ फॉर द एक्सप्रेशन, राइट? सो आपको कंटेंट और एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रखना है स्टूडेंट्स, एंड दिस विल बी परफेक्ट only and only when you people are well versed with writing English. So keep practicing, my dear children, okay? Keep practicing. Take any of the topic from the video, we'll be discussing in a while. आप खुद से लिखना ट्राई कीजिए, देखिएगा you will be improving your English very soon. Now what is expression students? Your grammar should be clear, your spelling should be clear, right? Your punctuation, that means you have to use appropriately all the punctuation marks while writing any sentence. Organization and coherence of ideas. Now what do you mean by coherence of ideas, right? Look, if you are supposing suppose you are posing any of the idea, right? Connect that idea just after one more idea that should be connecting. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले कुछ और लिखा फिर अचानक से आपने टोन ऑफ द आर्टिकल को चेंज कर दिया. आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम, अंडरस्टूड. मूविंग अहेड विद द इंट्रोडक्शन. सी, आई वोंट गो इन वेरी मच डिटेल, जस्ट आपके काम का जो है मैं वो बताऊंगी. आर्टिकल एक रिटन कंपोजिशन है, ठीक है? एक रिटन कंपोजिशन का पार्ट है दैट प्रेजेंट्स द राइटर्स व्यूज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो आप आर्टिकल राइटिंग में बेसिकली क्या करते हो? हम क्या करते हैं? हम व्यूज लिखते हैं, ओपिनियंस लिखते हैं और इंफॉर्मेशन लिखते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. ऑलराइट स्टूडेंट्स, it aims to inform, persuade or entertain the reader while maintaining clarity and coherence throughout the text. आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? The very first thing you have to remember is use linking devices such as however, therefore, although, even though, in addition to maintain flow and make the writing appear unified. Look here students, एक सजेशन रहेगा मेरी साइड से कि आप जब भी सेंटेंस को लिखें तो आप लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें, राइट? While you are using linking words, whenever a reader is reading or whenever the invigilator is reading your copy, answer copy, right? Your article basically. So that person must feel that you have portrayed your opinions, your feelings, your suggestions in a very proper manner. Right students? Next. Begin each paragraph with a fresh point. अच्छा, एक चीज़ बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, वो गलती ये है कि एक ही पॉइंट को ना 2-3 तरीके से घुमा घुमा कर लिखने की आदत. वेरी रॉन्ग इट इज़ माय डियर चिल्ड्रन, वेरी रॉन्ग.
अगर आप फ्रेश पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, बिगिन विद अ फ्रेश आइडिया, राइट? As you are beginning a new day with a new idea, new thoughts, new aspirations, new goals, so every paragraph must also contain all of these things. Yes, ma'am. Okay. Explain and develop your ideas fully so that they become meaningful, engaging and substantial. End with a powerful conclusion that highlights your strongest point of final opinion. अगर हम किसी भी टॉपिक को लेकर लिखते हैं तो व्हाट डू वी डू एक्चुअली? वी आर एक्चुअली राइटिंग अबाउट द टॉपिक. ठीक है मैम, लिख लिया. देयर आफ्टर जब हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, तो कंक्लूजन लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि व्हाटएवर इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन और द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, मुझे उस चीज़ को क्लियरली मेंशन करना है कंक्लूजन में. राइट स्टूडेंट्स? बिकॉज conclusion consists of the entire thing concluded in a paragraph. So conclusion should be very, very proper. Okay? Next, incorporate passive voice, emotive expressions, rhetorical questions and needed to create a specific effect on the reader. कुछ questions आप pose कीजिए कि do we as a human being are actually caring about nature? Right? So all of these kind of questions, they actually generates the impression. एक impression मिलना चाहिए स्टूडेंट्स. जब भी आप रीड कर रहे हो आर्टिकल, आप देखना, मैम ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. मैम विल टीच यू इन अ वाइल. ठीक है, मैम विल टीच यू इन अ वाइल. आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बिफोर आई मूव टू एक्सप्लेन दिस, just take a screenshot. I'm moving aside for a while. Just take a screenshot. Right? Taken? Okay. See. So herein, the format of the article begins with a title. The first thing you have to remember is writing a title properly. First thing, title. Okay? Illustrates the thematic connection and it should be eye-catching. Title पढ़ के समझ में आना चाहिए कि article किसके ऊपर लिखा गया है. Next, byline. So byline means what? Byline का मतलब होता है कि वो आर्टिकल किन के द्वारा लिखा गया है. ठीक है? नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर. यूज फिक्शियस इंफॉर्मेशन इफ द क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड एनी. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि किन्होंने लिखा है आर्टिकल, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. नेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. द फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ठीक है? एक बेसिक डाउट जो अक्सर लोगों में मिलता है मुझे कि मैम इन दोनों के बीच में लाइन लीव करनी है क्या? नो, डोंट लीव एनी लाइन. जस्ट राइट द टाइटल, just write the title and then put a dash, put a small hyphen, right? Put a small hyphen and write the name. That's it. Okay ma'am. Introductory paragraph, relevant topic sentence और उसका expansion. अब आप एक topic का मान लीजिए कि कोई आप point लिख रहे हो अपना. ठीक है? आपने एक point बना करके लिखा कि I have this so and so thoughts according to me. ठीक है मैम. आपका पॉइंट जो भी रहेगा आपको उसको इलाबोरेट करना है. इलाबोरेट मीन्स रेलिवेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स. ठीक है? नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक. अच्छा, जो टॉपिक आप लिख रहे हो ना, उसको इलाबोरेट ऐसे करना है कि आपने इसको कनेक्ट किया. दैट मीन्स फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड करना है स्टूडेंट्स. मैम ये सब कैसे करते हैं? मैम विल टीच यू, डोंट वरी. डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, लाइक कॉजेस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या है ना. प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली विथ एविडेंस. आप कोई भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आपके पास उसका एविडेंस ज़रूर होना चाहिए पीपल. ओके? तो आप कोई भी चीज़ वैसे वैसे नहीं लिख सकते कि यू आर नॉट गिविंग एनी ऑफ द एविडेंस. फैक्ट्स बता रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन दो कि ऐसा हुआ था. Afterwards, the next thing you have to remember is the concluding paragraph, that is writer's opinion or comments, recommendations or solutions, hope or call for action or warning. पहली चीज, recommendation, मतलब आप क्या recommend कर रहे हो अपने साइड से. Second, solution, अगर किसी प्रॉब्लम के ऊपर लिखा है तो आप solution देंगे. Next, hope या फिर call for action या फिर warning. तीन तरीके से हम आर्टिकल को एंड कर सकते हैं. पहला, I hope that so and so. Call for action, that means कुछ एक्शन अगर रिक्वायर्ड है, से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए
या इंडिविजुअल्स को लेना चाहिए या सोसाइटी को लेना चाहिए, राइट? या फिर वार्निंग. वार्निंग मीन्स इफ वी आर नॉट केयरिंग तो क्या होगा, इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट क्या होगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर. अच्छा मैम इसको बॉक्स में लिखना होता है क्या? नो, यू डोंट हैव टू मेक अ बॉक्स. आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये बॉक्स में लिखा गया. जस्ट टू गिव यू अ क्लियर फॉर्मेट, आई हैव ड्रॉन द बॉक्स फॉर यू पीपल. सो यू डोंट हैव टू मेक अ बॉक्स ओवर हियर, इट्स जस्ट रिटन लाइक दैट. मूविंग अहेड, सी अब एक एक करके मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लोग ना इसको ध्यान से समझना भी, ठीक है? ये पॉइंट्स हम समझना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आप लिख तो देते हो, है ना, आप लिख तो देते हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से और कैसे लिखना है, दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, हाँ, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है तो आप एक बार रिविजन करिएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है? हेडिंग, द हेडिंग शुड बी कैची, जैसे मैंने बोला ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए. 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा आप इसको एक्सीड मत करिएगा. अवॉइड अननेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स. बेसिकली वाइल राइटिंग द हेडिंग पंक्चुएशन मार्क्स हम जनरली यूज नहीं करते हैं. हाँ, इफ़ वी वांट वी कैन गिव अ हाइफन, राइट? इफ़ वी वांट, वो भी जहाँ ज़रूरी लगे आपको वहीं पर दीजिएगा, नॉट ऑलवेज. पार्ट 2 इज योर बाई लाइन. दिस इज द नेम ऑफ द राइटर, राइट? सो डू नॉट राइट बाय बिफोर द नेम, है ना? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप बाय ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है बिलो द हेडिंग, राइट? सी फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज गायत्री, सो आई विल बी राइटिंग गायत्री. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द बॉडी. अच्छा, बॉडी आपके लिए ना 3 से 4 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है. थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा क्योंकि वो 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो आपको उसका लेंथ उस हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? सो पैराग्राफ 1, अच्छा मैम कैसे लिखना है? ये जो आप 3-4 पैराग्राफ बता रही हैं, इनको लिखना कैसे है? सी, द फर्स्ट पैराग्राफ विल कंसिस्ट ऑफ the introduction to the theme of the articles. How can you begin a proper article? By giving a quotation कि it's well said by so and so person, या फिर एक striking fact, कोई भी आप fact पोस्ट कर सकते हो, कोई question पूछ सकते हो, है ना, या फिर कुछ statistic डाल सकते हैं आप to interest the reader, right? Keep the language simple and engaging. Language अगर हम पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, आई बिलोंग टू, आई हैव लाइक आई एम माई सेल्फ equipped with English, so I can tell you something on this language, that keeping the language clear and understandable, it's very very necessary, right? अगर आप बहुत high vocab use कर रहे हो, so along with the high vocab you have to use proper helping verbs, proper connecting words, right? तो all of these things are very very necessary children, ठीक है? आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे while writing. नेक्स्ट इज सेकेंड पैराग्राफ एंड द थर्ड पैराग्राफ. सो मेन कंटेंट को आप इलेबोरेट कीजिए 2 पैराग्राफ्स में. आप एनालाइज करिएगा थीम को प्रॉपर तरीके से. अच्छा ठीक है मैम, एनालाइज करेंगे कैसे? राइट दीज थिंग्स कि आपको क्या क्या मेंशन करना है. प्रॉब्लम्स मेंशन करनी है, इश्यूज मेंशन करने हैं, आइडियाज़ रिलेटेड टू द टॉपिक आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है? आप करंट सिनारियो भी बता सकते हैं उस प्रॉब्लम की. सी फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के लिख रहे हो तो उसका करंट सिनारियो क्या है, राइट? आप वो चीज़ मेंशन करिएगा. मेंशन द स्टेप्स टेकन और पॉसिबल सॉल्यूशंस. लुक, जैसा कि मैंने बोला कि इट मस्ट बी कनेक्टेड, राइट? Every line that you are writing, my dear children, you have to connect that line with the another line. That means आप जो लिख रहे हो ना उसको complete भी करना है. जैसे मान लीजिए आपने problem बताई, so along with the problem you have to give the solution, right? है ना? That only sounds as a good pair. आपने अगर problem लिखी है फिर आप उसको solution बता रहे हो,
वही ज़्यादा बेटर होता है. इंक्लूड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इफ नीडेड. अगर आप कुछ भी कोई भी टॉपिक वैसा लिख रहे हो जहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने पड़ रहे हैं तो आप वहाँ पर वो लिखिए अगर ज़रूरी है तो. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखिए, अगर आपको कुछ फैक्ट्स उसके रिलेटेड पता है. एक सजेशन रहेगा मेरी साइड से कि आपको अगर फैक्ट्स का नॉलेज है तो ही आप फैक्ट्स लिखिए. अगर आपको फैक्ट्स का नॉलेज नहीं है, आपको डेटा नहीं पता है उस टॉपिक के रिलेवेंट, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट आप गलत मत लिखिएगा. बिकॉज एनी ऑफ द फैक्चुअल डेटा इज गिवन बाय अ प्रॉपर सर्वे, राइट. इट्स गिवन बाय अ प्रॉपर सेंसस. तो हम इसको वैसे नहीं कर सकते कि हम कोई भी डेटा को कैसे भी पोर्ट्रे कर दे. नो, if you are clear with the data then only write the data, otherwise skip that part. Okay, no need to give wrong information related to anything. Okay children, next coming to the conclusion part. So for conclusion, this is the closing paragraph. Do not leave the article open ended. Open ended का मतलब समझते हो कि आपने उसको पूरी तरीके से complete नहीं किया है ना. Your points should be concluded in a proper manner. All right. Next, summarize all the major points. हम अभी बता रहे थे आपको कि conclusion लिखते वक्त हम सारी चीज़ों का एक summary लिखते हैं conclusion में, है ना. जो भी points मैंने लिखे, पर मैम क्या सारे points का conclusion लिखना possible है क्या summary में? No. So we'll only target the major points that we have addressed in our article. Okay. Next, give a final suggestion. ये मैंने तब भी बताया था, मैं दोबारा से बोल रही हूँ. आप एक final suggestion दीजिए या warning दीजिए या फिर एक balanced opinion दीजिए. Balanced opinion means if you are with a yes कि आपको ये चीज़ करनी है. बैलेंस्ड ओपिनियन का मतलब होता है कि आपने कोई ओपिनियन दिया कि वी शुड डू दिस और डू दैट और एनी ऑफ द थिंग. हाँ, एंड देन देयर आफ्टर यू हैव टू राइट कि अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा. ठीक है, ये चीज़ सही तरीका होता है स्टूडेंट्स फॉर कंक्लूडिंग एन आर्टिकल. ठीक है. एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग थॉटफुल रिमार्क. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक थॉटफुल रिमार्क के साथ आप किसी चीज़ को कंक्लूड कीजिए. बिकॉज एनीथिंग इज़ रेड, उसका फर्स्ट पार्ट और उसका लास्ट पार्ट वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है स्टूडेंट्स. तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो दोनों को बहुत अच्छे से स्टेबल करके लिखना है. ठीक है मैम. मेन बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट. ओके मैम. क्विक समरी फॉर यू पीपल, आप एक बार देख सकते हो. हेडिंग शॉर्ट एंड कैची होनी चाहिए. बाई लाइन आपने राइटर का नाम लिखना है सिर्फ और सिर्फ. इंट्रोडक्शन में आपको टॉपिक को डिफाइन करना है. और हुक मीन्स आप या तो कोट डालिए या तो फैक्ट डालिए या तो कोई क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. देन बॉडी में आप कॉजेज लिखते हो कि क्यों हो रहा है, उसके डिटेल्स लिखते हो. ठीक है. एंड उसके एग्जाम्पल्स भी लिखते हो उस टॉपिक के रेलेवेंट में, है ना. देयर आफ्टर एनालिसिस, दैट मीन्स अगर जो भी टॉपिक आपको मिले आप उसके इफेक्ट्स के बारे में लिखो, उसके सोल्यूशन के बारे में लिखो, उसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में लिखो. लास्ट कंक्लूजन, सम अप कीजिएगा, फाइनल ओपिनियन दीजिएगा और सम अप कीजिएगा ओनली मेजर पॉइंट्स. ठीक है. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, गो फॉर इट. टेकन चिल्ड्रन? Yes? Okay. Moving ahead. So coming to a certain examples. कुछ examples मैं आपको समझाऊंगी, कुछ examples आपको खुद से भी करने हैं. See, let's read this example. Okay. See, it's a huge question first of all. तो पहले आपको मैं question समझाऊं, उसके बाद हम इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं. In an era of rapid globalization means connecting world with different things, right? That means I am actually linking a lot of places together by the help of trade, commerce, businesses, technologies, advancements and so on. Okay?
Okay, and technological advancement, the preservation of cultural heritage remains a vital challenge. कल्चरल हेरिटेज को हमने अगर प्रिजर्व करना है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यूथ के लिए, राइट? इंडिया कंटिन्यूज टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेंटेनिंग ट्रेडिशन अलोंगसाइड मॉडर्निटी. आपने देखा है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, है ना, ये कल्चरल हेरिटेज को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा. यू हैव सीन इनॉर्मस प्लेसेस इन आवर कंट्री जो कि कल्चरली बहुत ज़्यादा डेवलप मानी जाती है, right? They have preserved their culture very nicely, students, right? Write an article exploring the role of cultural heritage in shaping the identities of today's Indian youth. Provide examples to illustrate your points whenever necessary. You may use some of the given cues. Now cues are given to you, हम देखते हैं, along with your own ideas. अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है कि you are Aarti Nirula of class 12A. That means this is your name. Name is mentioned in the question, so I'll be using this name. Okay? How have global interaction, अच्छा अब cues देखते हैं ना कि क्या cues दिए गए. How have global interactions and technologies, कैसे global interaction का मतलब होता है कि हम world से कैसे interact कर रहे हैं, कैसे communicate कर रहे हैं, ठीक है? और technologies influence करती है, कैसे influence करती है या फिर चेंज करती है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अमंग टुडेज यूथ. बिकॉज जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है चिल्ड्रन, वी आर एक्चुअली यू नो बीइंग डिटैच्ड वेरी वेरी स्लोली फ्रॉम आवर कल्चरल थिंग्स, राइट, फ्रॉम आवर कल्चरल हेरिटेज. तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा यूथ को, मुझे ये समझाना है. वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो लिख दिया. उसके बाद क्या लिखोगे, क्या बेनिफिट्स है of preserving cultural heritage for young people, कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगा टू द सेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब समझते हो, खुद के बारे में, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट. हाउ आई एम कनेक्टेड टू आवर कंट्री, राइट, हाउ आई एम एक्चुअली यू नो कनेक्टिंग माई सेल्फ टू आवर मदर नेशन, राइट, एंड कम्युनिटी ऑफ कोर्स हम जहाँ पर रह रहे हैं. Suggest ways in which young people and institutions can work together. हमने ये सजेशन देना है कि कैसे young people, लोग जो young लोग हैं वो आपस में मिल करके और institutions कैसे साथ में मिल करके काम कर सकती है to ensure the preservation of cultural heritage. एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना. Let's see the article. Okay ma'am. Look here. Cultural heritage, what is this? A punctuation mark. मैंने बोला था unnecessary यूज़ नहीं करना है, बट जहाँ पर necessary है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. मैम इसको कब यूज़ करते हैं, इसको कोलन को कब हम यूज़ करते हैं मैम? ये कल्चरल हेरिटेज को लेकर के मैंने एक लाइन लिखी है, कल्चरल हेरिटेज. आई हैव पुट अ कोलन ओवर हियर. अ ब्रिज टू आइडेंटिटी एंड इनोवेशन फॉर यूथ बाय आरती निरुला. अब यहाँ पर आपको बाय यूज नहीं करना है, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन अंडरलाइन द टाइटल, इफ यू वांट यू कैन. ओके, you might have seen in certain books like they are actually using by somewhere and then they are not using by somewhere. So there is obviously a confusion कि बच्चों को by use करना है या फिर नहीं करना है. According to my suggestion, if you want you can actually go for writing by, and अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिखना है तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है. It won't make any sense, but हाँ सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपका ये जो नेम है वो आप सही लिखो. आप बाय लिखना चाहो तो आप लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, कल्चरल हेरिटेज सर्व्स एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ आइडेंटिटी इनेबलिंग यंग पीपल टू कनेक्ट विद देयर रूट्स एंड कॉम्प्रिहेंड हाउ हिस्ट्री शेप्स देयर पर्सनल एंड कम्यूनल नैरेटिव्स. कितना सुंदर एक फैक्ट या फिर कह सकते हो एक ओपिनियन से स्टार्ट किया गया है आर्टिकल. कहता है कि कल्चरल हेरिटेज सर्व करती है कॉर्नरस्टोन, ठीक है, ऑफ आइडेंटिटी, और ये इनेबल कर रही है यंग पीपल को कि वो कनेक्ट करें. किन से कनेक्ट करें? अपने रूट से कनेक्ट करें. मैम, aren't we connected with our roots? We are actually connected, but
द सेंस ऑफ कनेक्टिविटी इज रिड्यूसिंग डे बाय डे चिल्ड्रन। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इनेबलिंग यंग पीपल टू कनेक्ट विद देयर रूट्स एंड कॉम्प्रिहेंड हाउ हिस्ट्री शेप्स देयर पर्सनल एंड कम्युनल नैरेटिव्स। अगर हम ट्रेडिशंस को इम्ब्रेस करते हैं तो यूथ को एक प्रोफाउंड सेंस मिलेगा ऑफ बिलोंगिंग, फॉस्टरिंग प्राइड इन देयर यूनिक कल्चरल लिनिएज। आप यहीं से कंटिन्यू करिएगा सेंटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट, exposure to diverse cultures cultivates tolerance and empathy। अगर हम different cultures, that means अलग अलग cultures से अगर हम connect हो रहे हैं तो ये एक sense of empathy देता है, tolerance देता है। tolerance का मतलब having respect equally for all the types of cultures, right? Essential traits in today's interconnected world। This understanding equips youth to navigate multicultural environments। जैसा कि मैंने बताया कि different culture के साथ अगर हम connect होते हैं with what? With respect। Simultaneously, देखो यहाँ पे connecting word use किया गया है, simultaneously। Traditional arts and crafts spark creativity, inspiring innovative reinterpretations of cultural expressions that align with modern lifestyles। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा है ना कि इफ़ एवर यू हैव हैपन टू सी एनी ऑफ द कल्चरल थिंग, आप लोगों ने देखा होगा वो कितने सुंदर पॉट्स बनाते हैं ना, वो कितनी सुंदर क्राफ्ट्स बनाते हैं, क्राफ्ट्स के अंदर ही ये पॉटरी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आती हैं, है ना। कितने सुंदर ब्यूटीफुल टेक्निक से वो टाई एंड डाई टेक्निक से क्लोथ्स को डिज़ाइन करते हैं, है ना। या फिर अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं with the help of several things, right? मार्बल को यूज़ करते हैं, बैम्बू स्टिक्स को यूज़ करते हैं और बहुत सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो एक्चुअली द कल्चरल थिंग इज एक्चुअली कनेक्टिंग विद द यूथ। अच्छा मैम, यूथ कैसे कनेक्ट होंगे? इफ़ वी आर लर्निंग ऑन हाउ दे आर एक्चुअली डीपली रूटेड विद देयर कल्चर, यूथ भी बहुत कुछ सीख सकता है। यूथ कैन एक्चुअली री इंटरप्रेट, है ना, रीइंटरप्रेट कर सकते हैं हम इसको, कल्चरल एक्सप्रेशंस को दैट अलाइन विथ मॉडर्न लाइफस्टाइल्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी बॉन्ड्स, है ना। अगर थोड़े थोड़े टाइम पर अगर फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस अगर रिचुअल्स का हो रहा है तो ये कम्युनिटी बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है, इन्हांस करता है सोशल कोहेशन। दैट मीन्स सोशली हम समाज से बेसिकली कैसे कनेक्ट हैं, है ना। इंटीग्रेटिंग कल्चरल स्टडीज़ इनटू एजुकेशन, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग कल्चरल स्टडीज़ इनटू एजुकेशन, राइट। व्हेन वी हैव डिज़ाइंड आवर एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स बचपन में पढ़े होंगे रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी, राइट, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन स्किल्स, राइट, है ना। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कुछ समझाती है हमें, है ना। हर एक प्लेस का अपना कल्चर होता है, वो हर एक प्लेस अपना कल्चर अबाइड करती है with various things, with various either dance forms or their songs, folk songs, folklores. So there are many things, children, right, to engage them with virtual museum tours, right. You can continue it from here, right, यहाँ से ऐसे यहाँ पर ये continue कर लीजिएगा यहाँ से। Digital storytelling and social media campaigns make heritage accessible and exciting। अच्छा मैम, हम कल्चरली कनेक्ट कैसे कर सकते हैं खुद को, राइट। जैसे हम कंक्लूड कर रहे हैं, जब हम कंक्लूडिंग लाइन दे रहे हैं, है ना, तो हम कैसे खुद को कल्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये बच्चों कि खुद को कल्चर से कनेक्ट करना, आप सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है एंड डिजिटल वर्ल्ड हैज़ ग्रोन सो हाई चिल्ड्रन कि आप लोगों ने कभी यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, कुछ वीडियोस वॉच किए होंगे रिलेटेड टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली शोइंग अप देयर कल्चर, सिंगिंग इन देयर कल्चरल सॉन्ग्स, और मे बी शोइंग अप देयर कल्चरल डांसेस एंड ऑल, राइट, ओके। इन एसेंस कल्चरल हेरिटेज इज़ नॉट जस्ट अ रेलिक ऑफ द पास्ट, है ना। हमें लगता है कि जो चीज़ बीत गई मैम, है ना, वो पास्ट थी, बट कल्चरल थिंग्स
है ना, जो पुराने समय से चलती आ रही हैं, जो कल्चरल चीज़ें जो आज भी लोग इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं अपने कल्चरल हेरिटेज को, ये सिर्फ पास्ट का रेलिक नहीं है बट ये एक लिविंग है, राइट, लिविंग इवॉल्विंग फोर्स है। बाय ब्लेंडिंग ट्रेडिशन विथ इनोवेशन, अगर हम ट्रेडिशन को और इनोवेशन को एक साथ ब्लेंड करके चलेंगे, सो यूथ्स कैन ऑनर देयर लेगेसी while shaping a globally aware, inclusive future, right? See how beautifully you have to craft, right? nahi, craft this article, okay? Moving ahead with the next question. Okay, see students, ये question आप लोगों के लिए है ना? आइए, you are Anuj, a student of class 12, okay? तो आपको यहाँ पर नेम मेंशन किया गया, आप इन्हीं का नाम लिखिएगा। Whenever you are stressed, you listen to music and get relaxed. आप जब भी म्यूजिक, अच्छा, how many of you are fond of music here? सबको म्यूजिक पसंद है, राइट? सिंगिंग सॉन्ग्स और लिसनिंग टू म्यूजिक, एनीथिंग माइट बी, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी आप स्ट्रेस होते हो तो आप गाने सुनते हो जाकर? यस मैम, सुनते हैं। यू स्ट्रांगली बिलीव दैट म्यूजिक डी-स्ट्रेसेस मतलब आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत कम कर देता है, एंड रिफ्रेशेज योर बॉडी एंड माइंड, है ना? आप अपना फेवरेट सॉन्ग, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जस्ट प्ले योर फेवरेट सॉन्ग, राइट, यू विल फील गुड, है ना? तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है ऑन म्यूजिक एज थेरेपी फॉर अ हेल्थ मैगजीन। तो एक हेल्थ मैगजीन में आपका आर्टिकल पब्लिश होने वाला है, इट्स अ गुड थिंग, हाईलाइटिंग द हीलिंग पावर ऑफ म्यूजिक। कहते हैं कि हील करने के मतलब ठीक होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वन ऑफ देम इज म्यूजिक, राइट? मैम मेडिसिन तो अपना काम करते हैं, लेकिन म्यूजिक हैज़ गॉट अ हीलिंग पावर, इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट्स ऑल्सो, राइट? आप देख सकते हो, आप गूगल पे आर्टिकल निकाल कर पढ़ सकते हो। यूज द फॉलोइंग क्यूज अलॉन्ग विथ योर ओन आइडियाज टू कंपोज दिस आर्टिकल। सी, म्यूजिक एस्टैब्लिशेस कनेक्शन विथ सेल्फ, म्यूजिक आपको खुद से कनेक्ट करती है। म्यूजिक हेल्प्स इन सेल्फ एक्सप्रेशन, आपको खुद को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। इट कम्फर्ट्स बॉडी, माइंड एंड सोल। ऑल ऑफ यू माइट एग्री विथ माई पॉइंट कि ये ना कंफर्ट कर देती है आपके पूरे माइंड को, आपके बॉडी को, है ना, और आपकी सोल को। इम्प्रूव्स वंस मूड, आपका मूड भी अच्छा हो जाता है ना? व्हेन यू आर इन अ बैड मूड, मैम हम तो चाहते हैं मस्त अपनी मर्जी का जो गाना फेवरेट सा लगता है उसको सुन लेते हैं। तो इसके ऊपर ना आपको एक आर्टिकल लिखना है। आप जो चीज़ करते आए थे अभी तक, आपको इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। इट्स अ वेरी फेमिलियर टॉपिक, ऐसा नहीं है कि कुछ अनफेमिलियर सा पूछा गया हो। देखिएगा, हाँ, हार्मनी फॉर हीलिंग, म्यूजिक्स हीलिंग पावर, इट्स रिटन बाय Anuj. As a class 12 student, navigating academic pressures, music has been my sanctuary. तो एक ये जो क्लास 12 का बच्चा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग माई डियर चिल्ड्रन कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो अभी, है ना? आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि आपको क्लास 12 का एग्ज़ाम देना है और बहुत अच्छे से देना है। ओके, its therapeutic power transcends words, offering solace to the mind, body and soul. Okay, so let me continue it again. Its therapeutic power transcends words, है ना, शब्दों को भी transcend कर जाता है, offering solace to the mind, body and soul. Okay, music fosters a profound connection with my inner self, allowing me to process emotions that words often fail to capture, है ना? जो चीज़ शब्द कैप्चर नहीं कर पाते हैं वो गीत कैप्चर कर लेता है, whether through poignant lyrics or soulful melodies, it becomes a medium for cathartic self-expression. साइंटिफिकली प्रूव किया गया, मैं बता रही थी आपको कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है ये बात कि ये कॉर्टिसोल लेवल्स को हमारी बॉडी से कम करता है एंड साथ ही साथ एंजाइटी को भी कम करता है। म्यूजिक के जो कामिंग रिदम्स होते हैं, दे एक्ट एज अ बाम, ईजिंग स्ट्रेस एंड फिजिकल टेंशन। यस मैम, सही बात है। सेकेंड,
Its versatility enhances mood instantly. इतना versatile है ना ये कि ये तुरंत से आपका मूड अपलिफ्ट कर देगा. A lively tune lifts spirits while a serene melody brings tranquility. Tranquility, single L. This duality helps me balance the chaos of deadlines with moments of reflection. Right? आप लोगों ने कभी I hope आप लोगों ने देखा होगा, there are certain people who are actually keeping diaries with them, right? So they are actually writing whatever they have, you know, experienced throughout the day. That is called as reflection of thoughts, right? For students like me, music isn't just entertainment. ये सिर्फ एक entertainment का माध्यम नहीं है, ये एक lifeline है. Lifeline समझते हो? Lifeline, right? It's connecting your life with so many things. It reshapes emotional landscapes, offering clarity and resilience. So when stress looms, let music be your ally. Plug into your favorite tracks and let harmonies guide you toward peace and equilibrium. One of the most important topics of chemistry again, right? I may not discuss about chemistry right now. So it actually balances your body, mind and soul, keeping all of them under equilibrium, right? Next. The next example. Okay, I'll explain you the question and thereafter you will do the solution on your own. Okay? So you are Sneha Hassan of class 12. आपको एक आर्टिकल लिखना है फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर आपको कुछ से फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा बोलना है ना, तो आपको बोलने से पहले, दैट मीन्स एक अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होने की आवश्यकता है, राइट? दैट मीन्स बिफोर यू लर्न टू स्पीक you have to learn to listen, right? So listening is very, very necessary. Expand on how good listening skills help one to gain multiple perspectives, be an effective team player and contribute to an overall atmosphere of empathy and care. आपको क्या क्या cues add करने, देखिए. Listening skills, listening and comprehending, paraphrasing, active body language like nodding, changing facial expressions and sitting straight. Effect on others, अगर आप ऐसा करते हो तो उसका क्या इफेक्ट है लोगों पर? We feel heard, है ना? हमें लोग सुनते हैं, acknowledge करते हैं, which builds trust, makes others more likely to hear us and leads to more ideas being shared. देखिएगा, अगर आपकी बातें कोई बहुत ध्यान से सुन रहा है ना, तो आपको बोलने की भी बोलने की इच्छा ज़्यादा होगी कि इफ़ दैट पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग, एक्टिवली लिसनिंग, राइट? आप लोगों ने देखा होगा अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं एंड इफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट, तो टीचर भी और ज़्यादा इंथुजियाज्म से पढ़ाते हैं, राइट? इट ऑल्सो वर्क सिमिलर विथ योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप पेरेंट्स को सारी बातें जा करके बोलते हैं. सेम गोज विथ योर फ्रेंड्स टू, राइट? तो अगर आप एक अच्छा सुनने वाले बनोगे ना, तो ही आप एक अच्छा बोलने वाले भी बनोगे, राइट? तो ये हम लोगों ने सीख ली इस क्वेश्चन से. मैम सीख तो ले ली, अब इसका जो आर्टिकल लिखना है वो जिम्मेदारी मैं आपको दे रही हूँ कि यू आर गोइंग टू राइट द आर्टिकल ऑन योर ओन विथ 2 एग्जाम्पल्स. मैम हैज टॉट यू पीपल ऑलरेडी. एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ. डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोगों ने कैसा आर्टिकल लिखा, बिकॉज आर्टिकल लिख करके तो आप कमेंट में नहीं कर पाओगे. बट हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसा लिखा, आप लोगों ने कितना सीखा एंड हाउ मच डिड यू लर्न फ्रॉम द वीडियो. ओके ओके मैम. All right children, so we have come to an end now for this particular video and I have taught you people article writing, कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज़ करना है. इसमें से आप लोगों को रिवाइज़ क्या क्या करना है? आपको टॉपिक अच्छे से लिखना है,
सेकेंडली आपको जो जिन्होंने लिखा है दैट मीन्स बाय करके उनका नाम, या फिर आप नहीं भी लिख सकते हो बाय, आप डायरेक्टली नेम भी लिख सकते हो. देयर आफ्टर यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. फिर आपको सेकेंड पैराग्राफ में इलेबोरेट करना है इश्यूज़ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना. ठीक है मैम. उसके बाद जब आप लोगों ने लाइक डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया अपना पूरा कर लिया है, देयर आफ्टर द लास्ट पार्ट इज़ द कंक्लूजन, जहाँ पे आप अपने मेजर पॉइंट्स को कंक्लूड करते हो विथ सजेशन, ओपिनियन और एनी अदर थिंग इफ दैट यू लाइक विश टू राइट. ठीक है. That's it. So that was all from my side for this particular topic. I know you people are struggling both of the things together. आप पढ़ भी रहे हो, आप बहुत कुछ स्ट्रगल भी कर रहे हो साथ में. ठीक है. So students, कैसा लगा ये वीडियो हमको ज़रूर से बताइएगा. And दृष्टि family wishes you all the very best for your board examinations. All the best बच्चों. Thank you.